عارفہ ان بیٹیوں میں سے جن پہ والدین ناز کرتے ہیں. عارفہ کو صحافت کی شیرنی بھی کہا جاتا تھا. میں انہیں عارفہ صوبہ خان، صوبہ نہیں تھا، صوبہ پہ کیا تو میں انہیں صوبہ خان کہتا ہوں. ان کے اندر ماشاءاللہ جو توانائی ہے، یعنی میں کتاب ان کی پڑھ رہا تھا، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو یہ اس کا عنوان ہے گنجے اور گنجیاں. خود میں خوشبو سما کے دیکھیں گے ہم کبھی پھول ہو کے دیکھیں گے. پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدی من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں. جا جا وڑنے مندر مسیتا او کدی من اپنے وچ وڑھیا ہی نہیں. آج کی یہ شام صبح کے نام، یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پر جو لٹریری تھیوری ہے اس کا تجزیہ ہے. مجید نظامی بڑے سخت مزاج کے آدمی تھے، کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ 2-3 بار وہ اس کا کیس لڑ رہے تھے. یہ تقریب ڈاکٹر عارفہ صوبہ خان کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے، جو ادب اور فنون میں اپنی گراں قدر خدمات کے لیے جانی جاتی ہیں. اس تقریب میں نہ صرف حاضرین کے لیے ادب شناسی کا ایک نیا مشاہدہ ہوگا، بلکہ UMT کی ادبی پہچان کو بھی مزید مستحکم کرے گی آج کی ادبی بیٹھک. آپ کی شرکت ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے. عارفہ ان بیٹیوں میں سے جن پہ والدین ناز کرتے ہیں. ویسے تو ہم نے بچپن سے جوانی سے یہ سنا کہ لوگ ادارے بناتے ہیں تو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے سنا نہیں ادارے لوگ بناتے ہیں تو امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. عارفہ نے دونوں کام نہیں کیے، بٹ شی از امپورٹنٹ. وہ ڈرامہ نگار بنی، وہ صحافی بنی، وہ نقاد بنی، اور میرا خیال پاکستان کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے انٹرویو کیے، اور انٹرویو بھی چھوٹے چھوٹے نہیں کیے، اخباری 3 دن صفحات کے انٹرویوز کیے. آج ہم ان کی بات بھی کریں گے، عارفہ کی شرارتوں کی بات بھی کریں گے. عارفہ کو صحافت کی شیرنی بھی کہا جاتا تھا، اور شیرنی بھی لڑاکا قسم کی. مہمان جن کو میں یہاں بلا رہا ہوں وہ گل تو نہیں ہیں، گلے تو خیز ہیں، اختر بھی ہیں، اور اپنی خوبصورت نثر کی وجہ سے اور طنز کی وجہ سے بہت پسند کیے جاتے ہیں. سر تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر. عارفہ صوبہ خان، میں انہیں عارفہ صوبہ خان، صوبہ نہیں تھا، صوبہ پہ کیا تو میں انہیں صوبہ خان کہتا ہوں. ان کے اندر ماشاءاللہ جو توانائی ہے، یعنی میں کتاب ان کی پڑھ رہا تھا، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو یہ اس کا عنوان ہے گنجے اور گنجیاں. اس کتاب میں جو لکھتی ہیں یہ کچھ اقتباسات دیکھیے گا. میں اس کے بعد آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ لکھتی ہیں یہ لاہوری لڑکیوں کے بارے میں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے یہ لڑکیاں دیکھی ہیں، اور اگر ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہیں ڈھونڈیں. اور ماشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ہماری یہ بہن اسی طرح مزاح لکھتی رہے. سب سے اہم بات وہ میں چاہوں گا جب عارفہ یہاں پہ آئیں تو وہ آپ کو بتائیں. شی از کینسر سروائیور، اور ابھی حال ہی میں، ابھی بھی بلکہ ان کو آپ جب دیکھیں گے تو ان کو تھوڑا سا بولنے میں تکلیف ہے، اور جتنی ہمت سے، جتنی بہادری سے انہوں نے کینسر کا مقابلہ کیا، اس کو شکست دی، تو ہمارے لیے تو یہ رول ماڈل ہے. بہت شکریہ. اب میں جس مہمان کو دعوت دینے والا ہوں، محترمہ آمنہ الفت صاحبہ، آپ کو ہی آنا ہے، اور آپ کی تھوڑی سی تعلیموں میں محترمہ آمنہ الفت صاحبہ. عارفہ صوبہ خان، اگر یہ 3 لفظ ہیں تو اس میں سموئی ہوئی یہ عارفہ جو ہے یہ 300 لفظ ہے. یہ بیک وقت خوش مزاج، خوش اخلاق، بیک وقت یہ لکھائی اسی کی. لیکن عارفہ نے جتنی خوبصورتی سے اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی بیماری کے حالات لکھے، میرا تو دل مٹھی میں آ گیا. اتنی سنجیدگی، اتنا انہوں نے رلا دیا.
वो जज्बात थे। और साथ ही जब ये कहती है लाहौर लाहौर है, तो फिर इन्होंने ऐसा हंसाया, ऐसी तनकीद की, हर बुराई को, हर खामी को, हर गलती को मज़ाह में ऐसा बयान किया कि मैं हंसती रह गई। फिर मैं भूल गई कि इससे पहले आरफा क्या कहती। इससे पहले कि हम आगे चले, जनाब अदील बरकी, हम चाहेंगे कि आपकी खूबसूरत आवाज से आप पहले तहरीर पढ़ना चाहें या आरफा की कोई तहरीर, और ये आपके ऑप्शन पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमने आपको 2 दफा जहमत देनी है, तो इसलिए इनकी तहरीरें पढ़ने के बाद मुझे ये यकीन ज़रूर है कि ये अल्लाह करे 100 साल बाद हर इंसान में जाना जब नहीं होंगी और फिर इनका यौम मनाया जाएगा, तो फिर अगर हम में से कोई लोग बैठे हुए तो उन्हें कितना खुशबू शर्मिंदगी का एहसास होगा। इसलिए कि हमने हमेशा सच्चे खरे दानिश्वरों को, इंसानों को उनकी जिंदगी में उनका सही मकाम दिया ही नहीं है। जब मैंने सोचा कि मैं क्या क्या करूं, वही मेरे सामने गजल इनकी आई, खुद में खुशबू समो के देखेंगे, उसके चंद अशार आपको सुनाता हूं। खुद में खुशबू समो के देखेंगे, खुद में खुशबू समो के देखेंगे, हम कभी फूल होके देखेंगे, हम कभी फूल बोझ हल्का करेंगे सीने का, बोझ हल्का करेंगे सीने का, हम कभी खुद पे, हम कभी खुद पे रोके देखेंगे, हम कभी खुद पे। और इस तरह इनकी बहुत सारी खूबसूरत गजलियात हैं। अगर मैं दोबारा आता हूँ तो उनमें से कुछ गजलें आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आज जो एक पैराग्राफ मैं इन पे लिखना चाह रहा था, जब मैंने उससे लिखा तो वो जाके मिल गया बुल्ले शाह साहब के कलाम से। वही कलाम मैं आपकी समातों की नजर करता हूँ और बहुत सारी दुआओं के साथ कि बुल्ले शाह साहब एक जगह कहते हैं, और ये बहुत सारी बातें आरफा के तहरीर में, इनकी शख्सियत में हमें नुमाया नजर आती हैं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी मन अपने नु पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़ने मंदिर मसीता, ओ कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें रोज शैतान नाल लड़ना, ओ कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह असमानी उड़ दिया फड़दा, ओ जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लड़ा की टोपी सिर धर के, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया,
لڑا کی تسبیحت پڑھ کے چلے کیتے پر رب نہ ملیا لڑا کی چلیاں وچ وڑ کے بھلے شاہ جاگ بنا دودھ نہیں جمدا پاویں لال ہووے کڑ کے راتی جاگے تے شیخ صداویں اوپر رات نو جاگن کتے تے تھی کتے مالک دا او در نہ چھڈ دے تے پاویں مارو 100 جتے تے تھی کتے راتی ساری آنکھ دے رہندے تے دن جارڑاں وچ ستے تے تھی اتے اٹھ بولیا اٹھ بولیا چل یار منا لے نہیں تاں بازی لے گئے کتے تھی اتے جے رب ملدا ناتیاں توتیاں ملدا ڈڈو مچھیاں جے رب ملدا جنگل بیلے ملدا گاواں مجھیاں تے جے رب ملدا مندر مسیتی ملدا جام چرٹیاں بھلے شاہ رب نانو ملدا کناں نو ملدا نیتاں جنا دیاں سچیاں میری نظر میں اس کلام میں عارفہ صبح خان کی تمام تحریریں تمام شاعری تمام نثر لکھا ہے تھینک یو سو مچ اچھا جی ابھی میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مختار ادبی صاحب سے اور میرا خیال ہے اس گزارش پہ ہم تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں کہ ان کی کتاب پہ بالکل وہ سیریس ہو کر تنقید نہ کریں جو کہ اس وقت جس طرح کا قوم کا موڈ بنا ہوا ہے تو تشریف لائیے ہم سب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ شام صبح کے نام تنقیدی گرہ کا انتصاب بڑا زبردست ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے. لکھتی ہیں اپنی پی ایچ ڈی ڈگری کے نام. یہ منفرد انتصاب ہے. اپنی پی ایچ ڈی ڈگری کے نام. پی ایچ ڈی مغرب میں بی اے کے 4 سال بعد اور ہمارے ہاں ایم اے میں 16 سال، ایم فل اور پی ایچ ڈی میں مزید 8 سال یعنی 24 سال کی مسلسل ریاضتوں کے بعد نصیب ہوتی ہے. اور اتنے سال پڑھ کر محنت اور ریاضت کر کے ملتا کیا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا. یہ انتہائی طنز اس کے اندر موجود ہے لیکن حقیقت بھی ہے. سنجیدگی سے جتنے بھی گفتگو کر لیں تعلیم کی بے توقیری اور تحقیق کی اور تنقید کی بے توقیری کے بارے میں، لیکن چونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو میں 2 مصروں میں بیان کروں گا کہ ایم اے چلائے ٹانگا، ایم اے چلائے ٹانگا، ایم فل اٹھائے بوری. ڈاکٹر صاحب ایم اے چلائے ٹانگا، ایم فل اٹھائے بوری، ہم بھی پی ایچ ڈی کر کے بیچیں گے بھنڈی توری. ویسے اپنی بیگم کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے، دل پہ جبر کرنا پڑتا ہے. آج ہم نے عارفہ کروا دینی ہے، آپ کی تعریف کیا یاد کریں گے آپ؟ یہ جبر بھی سہ لیں گے. ویسے میں ان محدود چند شعروں میں سے جو اپنی بیگم کی تعریف کر دیتا ہوں، لیکن آج ہم ظفر صاحب سے بھی سنتے ہیں. آئیے. اچھا آپ نے ان کی کتابوں کی تعریف نہیں کرنی، یعنی being the
स्पाउस, आपकी जो दोस्ताना ताल्लुक उनसे? सबसे पहले तो ये याद है कि एक दफा पहले भी हम तो संडे पे जब हमारा प्रोग्राम हुआ था जिसका भी आपने रेफरेंस दिया है, तो उसमें भी आपने मुझे बुलाया था और ऐसे ही था। जफर साहब आमतौर पे छुपे रहते हैं, आते नहीं है। अपनी जवानी में ये वाहिद आदमी थे जो अपनी बीवी को प्रोग्रामों में या जो उनकी होती थी असाइनमेंट, आप ऐसे ही है। एक दफा आपको मजीद लामी साहब ने भी छेड़ा था और उन्होंने कहा था तुम लोगों का हनीमून पीरियड ही खत्म नहीं होता। बहरहाल जी, जैसे कि उन्होंने फरमाया है कि भी तारीफ नहीं करनी, उनकी किताबों की तारीफ करनी है, उनकी नहीं करनी, इनके बारे में। इनके बारे में। तो ज़ाहिर है मैं छोटा सा वाक्य उनका बताता हूँ जो नहीं कोई ये जब हमारी शादी हुई तो कुछ सामान जो है ना वो इन्होंने जो जहेज में जो भिजवाया गया था तो उसमें से 2 जो सूटकेस थे वो इन्होंने स्पेशली पैगाम दिया कि जिसको कोई नहीं खोलेगा जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। तो हमारे घर वाले और तमाम जो रिश्तेदार थे वो बड़े हैरान परेशान थे कि कैसे ऐसी चीज़ है, बाकी चीज़ें तो तमाम जैसे कि दिखाया जाता तो ये नहीं दिखाया। तो जब ये आ गई उसके बाद कुछ दिन बाद फिर सस्पेंस रहा कि भाई दिखाएं वो खोलें वो क्या चीज़ है। तो जब वो सूटकेस थे भरे हुए थे लबालब थे तो साइड में जाकर जब खोला गया तो वो उसमें उनकी जो हमें समझा शायद कोई कीमती चीज़ें होंगी लेकिन उसमें उनकी किताबें उनके आर्टिकल जो 4 क्लास से लिख रही थी वो था और नींद का साधा था जो असल चीज़ नहीं था। तो माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये अदब का जो है ना ये एक कुदरती और अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड चीज़ दी है जो इनके साथ आई और माशाल्लाह इस स्टेज के जरिए आज दुनिया में आप सबके सामने ही थी। शुक्रिया। डॉक्टर साहब की बहनों में से इनकी 3 बहनें और हैं, यदि कुल 4 है ना आप लोग। बहनों में से कोई है आई हुई? साइमन कहाँ हैं आप? हाँ जी माशाल्लाह, आइए, गुड। वैसे तो बहनों से अपनी बहन की पजीराई देखी नहीं जाती, कम होता है। आप इतनी सीरियस हो गए ना आए, और अगर आप चाहें तो मैं आपको भी माइक देता हूँ। ओके, आ जाइए। आरफा की बहन होना कैसा तजुर्बा है? मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली के लिए डॉक्टर आरफा हमारा प्राइड है। और मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे भी पहले भी बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया कि डॉक्टर आरफा ने जिंदगी में जितनी स्ट्रगल की है वो मेरा इनका काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये बाकी सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं बात करूँगी इनकी जो लेटेस्ट बुक है गंजे और गंजियाँ। इस बुक को लिखने में अगर मैं आपको कहूँ कि 2 साल जो मैडम ने कैंसर का ड्यूरेशन अपना गुजारा है, इसमें मैं हर कदम पे इनके साथ थी और मैंने देखा है जब ये कीमो करवा के आती थी और इनकी जो भी कंडीशन होती थी वो आप लोग समझ सकते हैं कैंसर पेशेंट किस तकलीफ से गुजरता है। लेकिन इस तकलीफ में इतनी बड़ी तकलीफ को पैदा करना, उसे लेके आना, उसके ऊपर काम करना, मैं नहीं समझती कि इनकी 15 किताबें एक तरफ हैं और इनकी ये एक किताब इनकी पूरी शख्सियत को कायम करती है। तो हम तो इनके ऊपर जितना भी फख्र करें उतना कम है। तो अल्लाह ताला इनको मजीद कामयाबियां दे और मजीद इनके रास्ते आसान करे। और इनमें मैडम की खुशकिस्मती ये है कि इन्हें एक ऐसा हमसफर मिला जिसने इन्हें हर मौके पर प्रमोट किया, सपोर्ट किया और इन्हें इस काबिल किया कि ये आज हम सब के दरमियान मौजूद है। थैंक यू। डॉक्टर आरफा की अकलौती साहबजादी, वैसे तो सारी औलाद आपकी है कहीं? बेटा जी आ जाइए। और आपको हैरत होगी कि ये जो बेटी उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। मेरा नाम अंजील है, अंजील जफर। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी माँ पे बहुत फख्र है और मामा ने अपना ये जो कैंसर का टाइम था जितनी मुश्किल से गुजारा और इसमें मतलब मैं भी उनके साथ ही थी और मतलब मैंने अपनी माँ को देखा और उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस तरह मेहनत की
मतलब मुझे उन पर बहुत फख्र है और बस मैं नहीं बयान कर सकती, बस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सख्त माने या नरम माने? कभी कभी सख्त भी हो जाती है लेकिन ज़्यादातर नरम ही रहती है। हाँ, क्योंकि बाहर तो सख्त ऐसी है कि ये कर सकती है। नहीं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, एक क्या नाम है, ढाल की तरह हमेशा मेरे साथ रही। बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट है। आई लव यू मम्मा। डॉक्टर सादत सईद की पूरी उम्र अदब की खिदमत करती गुजरी और बच्चों को पढ़ाते गुजरी। माशाल्लाह शायर भी खूब हैं, नकात भी खूब हैं। अभी हम सुनते हैं कि सादत सईद साहब आपसे क्या बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी जनाब सदर सजाद मीर साहब, आरफा सुबह खान साहब, मुलैन नवाखेज अख्तर साहब, दीगर तमाम मुकर्ररीन। बात चुके इन्होंने ये कही है कि सीरियस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाल का माहौल ऐसा है के ख्याल में, लेकिन मुझे ये अंदाजा है कि हर आदमी अपने अंदर ऐसी सोच रखता है जो बहुत संजीदा होती है और वो संजीदा बातें सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो हमारी कौम जो है लतीफों और चुटकुलों से ही खुश रहती है और मज़ाहिया अदब जो है वो बहुत पसंद आता है उसे। लेकिन ये उस जमाने में बातें अच्छी लगती हैं जब कोई कौम जो है वो अपने पैरों पे खड़ी हो, फिर ये सारे नखरे कर सकती हैं। लेकिन जहाँ पर मामला दूसरों के दस्तनगर होने का है और अपना कुछ नहीं है, वहाँ पे शायद हमें इन रवैयों को बदलना ही होगा। अब ये जो किताब है मैं इस पर लिख के लाया हूँ, मजमून है कोई 10-12 मिनट का है, हो सकता है इसमें से एक दो बात मैं पढ़ दूँ। ये जो किताब है ये बुनियादी तौर पर जो लिटरेरी थियरी है इस वक्त जो दुनिया भर में ग्लोबल सतह पे मशहूर है उस पर है, उसका तजिया है और ये तजिया उसी नुक्ता नजर से है जिस नुक्ता नजर से इलामा साहब ने मगरबी दानिश को देखा है। जनाब सजाद मीर तशरीफ लाइए और आज की शाम की इस सबर वाले आरफा के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कल जब इसने फोन किया कि आपको कल मेरी तकरीब में आना है, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके एजाज में शाम है, कि इसकी किताब का फंक्शन है या क्या मामला है या क्या नहीं है। और मुझे भी ये मजबूरी भी थी कि 5:30 बजे मेरी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन बेतहाशा मेरे मुंह से निकला कि जी हाँ मैं आऊंगा। वजह यह थी कि मैंने इसे नए वक्त में, मैं इजहार कराची का एडिटर था तो साथ में 3-4 बार आया करता था, तो लाहौर आकर मुजीब निजामी बड़े सख्त मिजाज के आदमी थे, किसी का लिहाज नहीं करते थे। लेकिन मैंने देखा कि 2-3 बार वो इसका केस लड़ रहे थे, कोई कह रहा था कि उसने ये गलत किया और कहते नहीं वो ठीक किया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुजीब निजामी को जानते हैं कि वो उनका केस लड़े। मैंने इसका केस लड़ते हुए देखा, मैं तो छोड़ो भी, तुम जो कह रहे हो ठीक कहते हो, छोड़ो बस, मैं ठीक कह रहा हूं तुम्हें। इनकी तहरीरें भी उस जमाने मैंने पढ़ी थी। आज किताब जो मैं नहीं देखा मैं तो घबरा गया, मेरी तो इतनी सारी किताबें अगर मुझ के इसके रेफरेंस, लेकिन सभी हो गई। जब पता चला ना कि उसकी तारीख है तो 10 दिसंबर 1970 है, तो सदी ये हुई कि जो इसकी तारीख है पैदाइश है उससे 3 माह पहले मैं पेशेवर सहाफी के तौर पर सहाफत के मैदान में आ चुका था। राइटर, ड्रामा निगार, शायरा, मुहक्किक,
सहाफी, कॉलम निगार, बहुत अच्छी अम्मा और बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी बहन और बहुत अच्छी उस्ताद भी, इन्हीं को पढ़ाती भी रही है काफी सालों से यूनिवर्सिटी में। आप सबके भरपूर तालियों में जनाब आरफा सुबह खान। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी हाज़रीन का, उसके बाद अपने मेहमानों का, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया अदा बनता है करना मेरा UMT का कि उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत महफिल सजाई। जो अपने शोहर के नक्श कदम पर चल रही हैं, उनके साहबजादे इब्राहिम मुराद जो उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं, और मैंने 9 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, MPhil और PhD को, और खुदा गवाह है कि UMT और मिनहाज यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से और डिसिप्लिन के लिहाज से नंबर 1 यूनिवर्सिटीज है। ये किताब जिसका अभी बहुत चर्चा हुआ, गंजी और गंजियां, तो जाहिर है कि वो बहुत ही मानी रखती है, लेकिन जो दूसरी मेरी किताब है वो मेरी सारी जिंदगी की अरक्रेज़ी भी कह सकते हैं, जो तनकीदी गिरे हैं। डॉक्टर हसन सईद मुराद साहब के पास 14 मुसव्वदे गए और उन्होंने उनमें से सिर्फ एक मुसव्वदा जो है वो पसंद किया, मेरी ये किताब तनकीदी गिरे हैं, और ये मेरी खुशबख्ती है और मेरे लिए एजाज की बात है कि इतने सारे मुसव्वदों में उन्होंने, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं है, उन्होंने मुझे फोन किया और कह रहे हैं कि आपने क्या कमाल की चीज लिखी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें ये एजाज दें कि हम आपकी ये किताब छापे हुए हैं, तो मेरे लिए तो खुद ये फख्र की बात है। फिर डॉक्टर हसन सईद मुराद साहब ने इस किताब को इंतहाई इंतमाक से और इंतहाई मोहब्बत से और बहुत शानदार तरीके से शाया किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब ये किताब शाया हुई उनकी इंतहाई दिलचस्पियों की वजह से तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, और मुझे हकीकत में उनसे कभी नहीं मिली थी। लेकिन क्या है कि इंसान कुछ नहीं है, इंसान के अमाल ही सब कुछ है। आपका अमल अच्छा है ना तो आप एक जिंदा इंसान है, आप मर जाते हैं फिर भी जिंदा है। तो डॉक्टर हसन सईद मुराद आज भी मैं उनकी रूह को यहाँ महसूस कर रही हूँ, मेरे भाइयों की तरह थे, और फिर बाद में उनकी एलिया साहिबा और उनके बेटे ने एक इतना बड़ा काम किया है कि इस यूनिवर्सिटी से लोगों को इल्म देते हैं, और इल्म तो देते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बात ये कि ऐसे अभी प्रोग्राम्स आपने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखे होंगे। ये एजाज सिर्फ और सिर्फ UMT को हासिल है। तो मैं डॉक्टर नशाबा साहिबा को की शुक्रगुजार हूँ कि वो तशरीफ भी लाई और वो इस काज को जो डॉक्टर साहब का था उसको पूरा कर रही है, उस मिशन को। बहुत शुक्रिया। अच्छा क्या है कि मैं तकरीबन सैकड़ों तकरीबात में जाती रही हूँ, सियासत पर बातें करती हूँ, अदब पर बातें करती हूँ, तालीम पर बातें करती हूँ, सोशल इश्यूज पे बातें करती हूँ, औरतों पर बातें करती हूँ, सारी जिंदगी मसाइल पर बातें करती रही हूँ। तो क्या है कि मैंने कभी जिंदगी में अपने ऊपर बात नहीं की, आज ही मेरी जिंदगी का पहला मौका है, मुझे हौसला दीजिएगा कि मैं अपने ऊपर बात करूंगी। ऑडियंस की तरफ से ना मैं आरफा के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ। जी जरूर। क्यों इनके लिए सिर्फ शेर है। क्यों पूछते हो मेरी आंखों की वुसअत क्या है, क्यों पूछते हो मेरी आंखों की वुसअत क्या है, बंद आंखों से भी देखती हूँ तमाशे अक्सर। क्या बात है।